I already explained the two terms related to the speed. One is uniform speed and another one is the average speed. Now the third term, that is instantaneous speed. What do you mean by instantaneous? If some physical phenomena is happening without the losing of any times, then it is known as instantaneous. So what is instantaneous velocity? Instantaneous speed. Instantaneous speed. What is instantaneous speed? Okay, the rate of change of distance. The rate of change of distance. The rate of change of distance is known as instantaneous speed. Instantaneous speed. Here इसको और precisely, if you want to define more precisely, you may say that this is the limiting case of average speed. This is the limiting case of average speed. This is the limiting case of average speed. And if you observed, this is the limiting case of average speed. If you observe my video on the differentiation and integration, then you know very well what is the mean by limiting case. Let me explain. Suppose that in a very short interval of time you travel some distance delta s. In a short interval of time you travel a distance delta s such that in a short interval of time delta t, short interval of time delta t, if an object travel a distance delta s where delta t is tends to 0, मतलब delta t बहुत बड़ा नहीं, it is not too much, but इतना भी छोटा नहीं कि आप उसे 0 मान सकें, वो बहुत बड़ा भी नहीं है. ठीक है, तो ऐसे में हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करते हैं. लिमिट डेल्टा टी इज टेंस टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एस. ये क्या है? आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला है. वी इंस्टेंटेनियस का फार्मूला है ये. तो यहां से आप क्या समझे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? You understand that कि if s varies with time in the differentiation mode, then you will define instantaneous speed. वहां पर आपकी instantaneous speed define होगी. ठीक है, तो ये हम आपको डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज में लिख के भी दिखा देते हैं. क्या है? वेरिएशन इन द डिस्टेंस. वेरिएशन इन द डिस्टेंस. Variation in the distance with respect to variation in time. ये मैंने आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के चैप्टर में भी करके दिखाया था. वेरिएशन इन टाइम. तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस गिव्स अस स्पीड. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस गिव्स अस स्पीड. दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ स्पीड. नाउ वी हैव टू डिस्कस द फोर्थ काइंड, दैट इज नोन एज वेरिएबल. Variable or non-uniform speed. Variable or non-uniform speed. If the distance traveled by an object, is not uniform, yeah, more precisely you say that if an object cover unequal distances in unequal interval of time, then object is said to moving with variable or non-uniform speed. If an object cover unequal distances in unequal interval of time, unequal
interval of time, then object is set to be moving, with variable or non-uniform speed, moving with variable or non-uniform speed. This is the fourth class of the speed. Please pause the video and note down whatever it is marked on the whiteboard. Now we will proceed further. Okay, so you have to pause the video and note it all these things, and hopefully now the quality of the video is too much improved and you are not facing any problem. If you are facing again any problem, let me know. Okay, so now for these two I will explain you another graph. The graph between the distance and the time. This is the distance axis and this is the time axis. Okay, I already told you two graphs. This is the third one. In the case of non-uniform speed, the graph will be anything but not the straight line. स्ट्रेट लाइन को छोड़कर ग्राफ का शेप कैसा भी हो सकता है अगर वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, बस स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करता है और उसमें भी एक कंडीशन लगी हुई है कि थीटा मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक ग्राफ है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, लीनियरसी नहीं है, लीनियर नहीं है। तो भाई ये वेरिएबल स्पीड का ग्राफ है। अब इसी में अगर आपसे मैं कहूं कि एक पार्टिकुलर पॉइंट की बात करी, जैसे मान लिया हमने ये पॉइंट की बात की, इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है? क्यों? क्योंकि डिफरेंट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट स्पीड होगी। ठीक है, तो चलिए हम एक ये वाला पॉइंट लेते हैं। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन के केस में किया था कि कॉर्ड का लिमिटिंग केस बनाया था टेंजेंट, वाई और एक्स एक्सिस के ग्राफ में हमने एक कर्व खींचा था, कर्व में दो पॉइंट लिए थे पी एंड क्यू के बीच में एक लाइन खींची थी और आपसे कहा था ये कॉर्ड है। फिर वो धीरे धीरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस घटती गई और फाइनली वो एक पॉइंट से टच करके जाने लगा। तो वैसे ही यहां भी ये एक पॉइंट से टच करके जाने वाला ये ग्राफ, ये लाइन है, ये लाइन जो कि पहले कॉर्ड थी अब वो टेंजेंट बन गई। लेकिन अगर ये ग्राफ वो वाई और एक्स के बीच का ग्राफ था, ये ग्राफ है एस और टी के बीच का, यानी टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम के बीच का। तो इसका ग्राफ आपको क्या देगा? इसका ग्राफ आपको क्या देगा, या ये लाइन यहां पर क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस डेल्टा एस ट्रेवल करता है टाइम डेल्टा टी में, देखो ठीक, और ये एंगल है थीटा। तो ये जो ग्राफ, द टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व गिव्स the velocity, speed at that point। उस एक पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, इसका पता हम किससे लगाएंगे? उस टेंजेंट से लगाएंगे, वो जो टेंजेंट हमने ग्राफ पर खींचा है। अब ये डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट टेंजेंट होगा, तो इट इज ऑब्वियस दैट टेंजेंट डिफरेंट क्यों होगा? क्यों? क्योंकि देखो जैसे यहां के लिए खींचा तो थीटा डिफर, यहां के लिए खींचा तो एंगल डिफर। तो इसका मतलब डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट क्या हो सकती हैं? स्पीड्स हो सकती हैं। तो क्या इंफॉर्मेशन आपको इस ग्राफ से मिली कि एस टी के ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट लाइन, किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट लाइन आपको क्या देगी? उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू देगी, यानी द टेंजेंट, द स्लोप ऑफ, इसको भी नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे? द स्लोप ऑफ
द स्लोप ऑफ एस वर्सेस टी ग्राफ गिव्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, गिव्स द इंस्टेंटेनियस और स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा सा, ये तो हुई स्पीड। अब डिस्टेंस का चेंज स्पीड है नटशेल में, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट का चेंज है वेलोसिटी। तो अब हम वेलोसिटी की भी 4 क्लास देखेंगे। ऑन द सेम लाइन ऑफ डिस्कशन हम वेलोसिटी की भी 4 क्लास देखेंगे। कैसे देखेंगे? देखिए, 4 क्लास देखेंगे। पहली क्लास होगी यूनिफॉर्म, ठीक। दूसरी क्लास होगी एवरेज, ठीक। तीसरी क्लास होगी इंस्टेंटेनियस, और चौथी क्लास होगी वेरिएबल। तो जैसे स्पीड की 4 क्लास थी, 4 टाइप्स थी, वैसे ही वेलोसिटी की भी 4 क्लास हैं, 4 टाइप्स हैं। हमें चारों टाइप डिस्कस करनी होगी अलग अलग, ठीक है। तो ये तो स्पीड की 4 क्लास हो गई, ये वेलोसिटी की 4 क्लास का क्लासिफिकेशन हमने लिख लिया। अब आप वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करके इसे नोट कर लें। नेक्स्ट बोर्ड पर हम आपको बताएंगे वेलोसिटी की कॉजेज, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं क्वालिटी बेहतर होगी, ठीक है। चलिए साहब, तो वेलोसिटी की 4 कॉज है। ये वीडियो को पॉज करके आपको नोट करते रहना है। जब मैं आपके सामने स्क्रीन खाली कर दूं तो आप समझ लें कि अब आपको नोट करने का टाइम आ गया है। तो भाई पहली वेलोसिटी कौन सी हम डिस्कस करेंगे? कौन सी डिस्कस करने वाले हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो, इसमें मैं तुम्हें कुछ ग्राफ भी बताऊंगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन equal interval of time, if an object cover equal displacements in equal interval of time, then object is set to moving with यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हाउ एवर स्मॉल द इंटरवल में भी, ये भी एक शर्त है इसमें, हाउ एवर स्मॉल द इंटरवल ऑफ टाइम में भी, कितना भी छोटा इंटरवल क्यों ना ले लें, अगर उस इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वेलोसिटी, तो हम कहेंगे आप वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब यहां पर हम आपको 3 ग्राफ सिखाएंगे। देखिए, ये मामला डिस्प्लेसमेंट का है, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इन्फॉर्म कर रखा है, नोटवर्दी पॉइंट में लिखाया था कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है और डिस्प्लेसमेंट 0 भी होता है, ठीक है, बताया था। तो ये देखो 3 ग्राफ हम खींच रहे हैं। पहला ग्राफ में अभी ये टाइम एक्सिस है, लेकिन अब ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, तो वेक्टर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वेक्टर लगा देंगे। अगर ग्राफ ऐसे है तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, दैट इज वेलोसिटी इज 0। तो वेलोसिटी 0 होने की कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होना चाहिए। ये पहला ग्राफ हुआ। अब एक ग्राफ हम दूसरा और बनाते हैं आपके लिए। आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन अनदर ग्राफ, T एंड S, ठीक। ये इसमें अगर ये ऐसे है, ठीक है, तो कहीं भी आप S/T निकालेंगे, यानी स्लोप एंगल, तो वो कांस्टेंट आएगा। चाहे यहां निकाल लो, चाहे यहां निकाल लो, चाहे यहां निकाल लो, कहीं भी निकाल लो। तो इसमें आप क्या कहेंगे?
इसमें आप कहेंगे ये सेकंड ग्राफ का इन्फियरेंस है, ये फर्स्ट ग्राफ का इन्फियरेंस है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है इसमें मैं आपको एक चीज और बताना पसंद करूंगा। ठीक, ये तो एक पॉइंट हुआ, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बीच से लाइन खींच दे रहा हूं। इसमें दूसरा पॉइंट है, इफ ये जो एंगल है आपका थीटा, इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, 90 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 का केस ये है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, दैट इज थीटा इज एक्यूट, थीटा एक्यूट हो, देन v इज पॉजिटिव, v क्या होगा, पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब यहां पर एक तीसरा केस भी बनता है। देखो, स्पीड में सिर्फ ये केस बनेगा, लेकिन वेलोसिटी में, स्पीड में हमने 2 केस करे थे, ये वाला केस और ये वाला केस, लेकिन वेलोसिटी में हम 3 केस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई 3 केस? जैसे कि हमारे पास वेलोसिटी के लिए ये भी हो सकता है, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट अगर 0, डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है यानी टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ घट भी तो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ घट सकता है तो फिर हमें क्या मुश्किल है, ये हमारा ग्राफ आ गया। इसमें भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए यहां पर ऑब्जेक्ट, ये तो बिल्कुल लिखेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन की वजह से यहां ये वाला स्टेटमेंट तो लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो मूव कर रहा है, लेकिन यहां पर एक बात और लिखी जाएगी। जरा ग्राफ देखो, इसका ग्राफ जो है वो, ये स्लोप कितनी है, थीटा की वैल्यू क्वाइट ऑब्वियस है कि 90 से ज्यादा है। क्या है, 90 से ज्यादा है। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, दैट इज थीटा इज ऑब्ट्यूज, थीटा क्या हो, थीटा इज ऑब्ट्यूज, देन v इज नेगेटिव। ये 3 ग्राफ आपको और मिल गए। तो इन्फियरेंस आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ग्राफ का इन्फियरेंस मतलब व्हाट इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू बाय द ग्राफ। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ में ये वाला सीधी लाइन मिल जाए तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर, अगर ये वाला ग्राफ मिल जाए तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग, और अगर ये वाला ग्राफ मिल जाए तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट इज स्टिल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट नेगेटिव, यानी डिस्टेंस टाइम के साथ घटती चली जा रही है, लेकिन रेट क्या है घटने का, यूनिफॉर्म है। इसमें बढ़ती डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ने का रेट क्या है, यूनिफॉर्म है। तो ये था बेटा पहला क्लास। आप वीडियो को पॉज कर इसे नोट कर लीजिए। स्क्रीन पर सब कुछ लिखा आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मुझे उम्मीद है पूरी। अब उसके बाद हम लोग दूसरा केस करेंगे एवरेज वेलोसिटी का। ठीक, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये बेटा आपको पॉज करके नोट करना है। अब हम लोग करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, तो सॉरी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर, नहीं, इट इज द रेशियो ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट, इट इज द रेशियो ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन, इट इज द रेशियो ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज वेलोसिटी है। जैसे वहां था
नेट डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये एवरेज वेलोसिटी के लिए भैया फिर वही फार्मूला लो। 3 टुकड़े बनाओ। एक में मान लो वेक्टर S1 टाइम लिया T1, एक में वेक्टर S2 टाइम लिया T2, एक में वेक्टर S3 टाइम लिया T3। S1 S2 एंड S3 ये हो गया बेटा, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लिख दो। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला ये हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? S1 प्लस S2 प्लस S3, वेक्टर साइन है बेटा ये, T1 प्लस T2 प्लस T3। ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। यानी ये वेक्टर V मीन है। इसमें बस हम एक यही सिंबल दे पाएंगे, दूसरा कोई सिंबल हम नहीं दे सकते। तो ये मीन वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी के बाद अगला क्या है, इसमें हम वो डिस्कस नहीं करेंगे जैसे हमने यूनिफॉर्म एवरेज स्पीड में किया था। सेम केसेस इसमें भी है। इट इज ओनली वेस्टिंग ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड जान लीजिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement, the rate of change of displacement is known as instantaneous velocity, instantaneous velocity, ठीक। और it is the limiting case of average velocity, it is the limiting case ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब चूंकि मैं एवरेज स्पीड को ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं, तो आपको ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। लिमिट डेल्टा टी इज टेंस टू 0 ds अपॉन डेल्टा एस वेक्टर साइन के साथ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये, अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ds अपॉन dt इज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, ठीक। अब उसके बाद वेरिएबल मैं बोल देता हूं। इसमें वेरिएबल आप क्या लिखेंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेट टू मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। चौथा आप खुद से लिख लीजिएगा। एक्सीलरेशन डिस्कस करते हैं।